میں آ گیا. میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو. جنرل تو ہے وہ، تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے نہیں خواب میں. میں نے کہا جی آپ نے نبی الاسلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی. اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے، سیکھ پاؤ گے. رکو ذرا، صبر کرو. میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ. اب آگے وہ تعویل کر رہا ہے کہ جس شکل میں تو نے دیکھا ہے نا نبی کریم کو، تو کسی صحابی نے نہیں دیکھا تھا، وہ پھر کسی اہل بیت نے نہیں دیکھا حضور کو. کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پوری داڑھی مبارک حضور کی سفید نہیں ہوئی، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ کون سی روایت کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے وہ سفید پگ باندھتا ہے، اس کی سفید داڑھی اور اس کے سفید کپڑے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی تو نے شیطان کو دیکھا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ شیطان تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. یہ ہے جناب علی بھائی، جس کو علی بھائی اور نادان طبقہ جو ہے ہمارا، وہ اس کو بہت بڑا کوئی اسکالر سمجھ رہا ہے یا اس کو بہت بڑا کچھ سمجھ رہا ہے. یہ جاہل مطلق انسان ہے. یا تو یہ کوئی سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے. اصلاحی صاحب بہت شور آ رہا ہے. اصلاحی صاحب مائک میوٹ رکھتے نا آپ، بہت شور آ رہا ہے، یقین مانیے. یا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ہینڈ فری لے لیں، ہینڈ فری لگائیں. تو ہینڈ فری اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ لگائیے. اس طریقے سے تو صحیح نہیں ہے، بہت شور ہے. میں نے مائک آپ کا میوٹ کیا، خود کی ہے. ابھی آپ لے لیں کوئی ہینڈ فری، وہ لگا لیں، کیونکہ وہ یوٹیوب پر آنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یوٹیوب کے استعمال کا بھی اپنا طریقہ ہے. تو وہ ایسا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہینڈ فری کو لے لیں تو پھر مائک اوپن کر کے بات کریں. جب آپ نے بات کرنی ہو تو نیچے مائک. اصلاحی صاحب کو میری آواز نہیں لگتا ہے آ رہی. اصلاحی صاحب مائک آپ کا میں نے میوٹ کیا ہوا ہے، مائک اوپن کر کے بات کریں. جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آئی ہے، شور بھی ساتھ آ رہا ہے ماشاءاللہ. جی شور بچیاں دا بچیاں کیا تھا، بچوں سمجھاتا بچے کو انہوں ہوں. سر میری گزارش صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے مبارکہ ہے انہیں ایڑا بندہ ایڑا بدبخت ایڑا جونیئر جڑا ہے نا، یہ کی پتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دا، سرکار دے چہرے مبارک دا، سرکار دے حسن و جمال ہے، اس میں کی پتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ نے کیا تو وہی گلاں نے کہ وہ بندہ انہیں جو آیا انہوں حدیث سنانے دا تسی گل بالکل صحیح تسی گل کیتی ہے. تسی سر بالکل صحیح گل کیتی ہے. آواز میری آ رہی سر؟ جی آواز آ رہی. مجھ سے فری لایا ذرا سر ایک منٹ ذرا سیٹ ہو لیندے ہو. اچھا میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی تسی گل کیتی ہے مفتی صاحب، تسی بالکل صحیح اسلام دے مطابق گل کیتی ہے کہ انہوں یہ کہنا چاہیے سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد ہے کہ مفہوم جڑا کہ جس نے منو دیکھیا خواب در صلی اللہ علیہ وسلم نے منو دیکھیا اور میری زیارت بھی وہ کرے گا. ٹھیک ہے، ان پوری حدیث سنانی چاہیے سرکار نے. اب اس نے حدیث سنا دے بچائے اپنے طور پہ فتویٰ جاری کرتا لاتا ہے کہ تم اپنا شیطان نے تو شیطان نے دیکھا اور حدیث سے دسی دی گستاخی کیتی ہے، حدیث سے مبارکہ دی گستاخی کیتی ہے، حدیث دے فلسفے دی گستاخی کیتی ہے. اور حدیث دی جڑی ایک روشنی جڑا پیغام جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਵੇਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦਜੀਆ ਖੜਨੀਆਂ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਫਹੂਮ ਬਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹਦੀਸ ਸੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। YouTube ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਹਦੀਸ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਕਮਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਤਵੇ ਵੀ ਜਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਕਰੋ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। जी जी सर। जी जज़ाकल्लाह जी। दोस्तों से गुजारिश करता हूँ को शेयर करें बराड को और कमेंट भी करें, कमेंट भी जारी रखें। और आफिया साहिबा आई हैं गेम, माइक म्यूट कर लिया करें इस्लाही साहब, वो शोर आता है। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये भाई आप ना लाइव कॉल कर लें और कमेंट भी करें, कमेंट से कोई रोकता नहीं है आपको, लेकिन आप लाइव कॉल, क्योंकि कमेंटों के ऊपर उमूमी तौर पे नज़र मेरी तो नहीं होती, हाँ दूसरे देखने वालों की नज़र होती है, लेकिन मेरी नज़र बहुत कम पड़ती है। अच्छा जी, ये तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की एक वीडियो है। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिए कि इस वीडियो के अंदर तो ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, अगली वीडियो के अंदर सहाबा की तौहीन कर रहा है। वो इस तरीके से वो कहता है कि देखो जी ये जो मेरे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट से मुराद ये लेता है कि जो भी इसको सुनता है वो इसका स्टूडेंट है जी। स्टूडेंट इंग्लिश का लफ्ज है, शिगिर्द जो होता है उसको इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं। तो हालांकि शिगिर्दी का फलसफा कोई अलग है, तो वो जो भी यूट्यूब पे उसको सुनता है तो वो कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। अच्छा जी, बहरहाल इसका अपना एक फलसफा है। तो कहता है जो मेरा स्टूडेंट है ना वो है सहाबी है। सहाबी भी ऐसा कि जिस तरीके के वो जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, वो अपने 4 यूट्यूब के चैनल का नाम लेके कहता है कि जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर फरूक, उस्मान गनी और मौला अली थे, वैसे ये मेरे यूट्यूब के 4 चैनल हैं, मेरे स्टूडेंट के ये चैनल हैं। फिर जनाब कहता है वो अशरा मुबशरा थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। तो मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है तो वो तो 2 बंदे उसके सामने बैठे हैं, कहता है उन अशरा मुबशरा में तुम भी शामिल हो। कहता है फिर वो 313 जैसे बदरी सहाबा थे तो वो भी मेरे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरीके से सहाबी और भी बढ़ते जा रहे थे तो वैसे मेरे भी स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को वो सहाबा की जगह के ऊपर लेके आ गए, यानी जो इस स्टूडेंट है वो सहाबी है और उसको वो ही मर्तबे मिले हैं अबू बकर सिद्दीक, उमर फरूक, उस्मान गनी, मौला अली का, अशरा मुबशरा का, हक 4 यार और क्या इसका नाम है वो बदरी सहाबा का उसको दर्जा है, ओहद के सहाबा का दर्जा। समझ आई कि नहीं? अब वीडियो सुनिएगा। दोस्तों से गुजारिश है वीडियो शेयर कर दें, कमेंट भी करें और कॉल भी डालिए। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम,
ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। इस्लाही साहब आपने सुन लिया, आप खुद ख़त्म नबूवत के राइटर हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर आपकी किताबें हैं, और ख़त्म नबूवत के हवाले से आपका बड़ा वर्क है। आप क्या देखते हैं कि ये इस दौर का मिर्ज़ा कादियानी नहीं है? जो मिर्ज़ा कादियानी के अकायद और नज़रियात थे सेम वही अकायद और नज़रियात इस बंदे के नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी ने भी अपने 313 साहबी बनाए, उसने भी अपने अशरा मुबशरा बनाए, उसने भी अपने हकचार यार बनाए। तो सेम इसने मिर्ज़ा जूनियर जेल में ने ये किया। आप इसके ऊपर रोशनी डालें जी। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। मुझसे बात यह है कि पूरी उम्मत जो है ना, 157 ममालिक जो है, उसमें जो पूरी उम्मत है हमारी मुसलमानों की, हमारे बुजुर्ग जो है, सब ये फैसला है कि जो सहाबी है, सहाबी वही है जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। बाकी जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मकाम अपनी जगह है। जैसे दाता अली जवेरी है, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने, जितने भी औलिया अल्लाह है वो बड़े बड़े मुकाम वाले हैं, वो सब जो है ना सहाबी के ज़मरे नहीं आते, औलिया अल्लाह उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। एक तो बात ये है कि सहाबी होने के लिए शर्त जरूरी है कि जितनी मर्जी नेकी बना कर ले, जो मर्जी कर ले, सहाबा भी उसी जब तो हज़रत वसल्लम की ज़ियारत होगी हयात तैयबा में, यानी अपनी जिंदगी में उस बंदे ने सरकार दो आलम वसल्लम की ज़ियारत की है और ईमान के साथ ज़ियारत की है। वैसे तो अबू जेल ने भी ज़ियारत की है, कई अबू लहब ने भी ज़ियारत की है, लेकिन ईमान की हालत में जिसने ज़ियारत की है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कलमा पढ़ाई वहां पे कैमरा है, वही सहाबी है। बनेगा कि बंदों करार दे रहा है और अशरफ मुबशर करार दे रहा है। अब वो बंदा जनती है, जहन्नमी है, उसको अल्लाह तबारक तआला की जात जानती है। या का दो अलैहि वसल्लम का मुकाम मुस्तफा ये है, शान मुस्तफा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर फैज है कि वो जनती और जहन्नमी होने की आका दो अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बिशारतें दी हुई हैं कि ये अशरफ मुबशर है, जनती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उन्होंने जैसे खुलफा राशिदीन अशरफ मुबशर जो सहाबी है उन्हें कह दिया आप जनती है, आप जनती है, आका दो अलैहि वसल्लम ने जनती कह दिया। ऐसे बंदे भी हैं, एक वो सहाबी था, उसने खुदकुशी करने वाला था, तो सरकार ने देख लिया, सरकार ने कहा ये जहन्नमी अली को इस्लाम की लड़ रहा था। जब आखिरी वक्त आया तो दूर चला गया, लोगों ने कहा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बंदा ये जरूर जहन्नमी होगा। आगे जाकर देखा जख्मी हो गया, उसने आपने खुदकुशी कर ली, तो हजूर ने पहले फरमा दिया था कि जहन्नमी है। यानी आका दो अलैहि वसल्लम का मुकाम ये है हमारे हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जहन्नमी और जहन्नमी और जन्नती देते हैं। आगे ये बात होगी कि ये खुद ही कह रहा है, ये 1984 से पहले बेशुमार कादियानी कहते थे। मिर्जा कादियानी के जो है ना जितने भी मरज़ई हैं, कादियानी है, लाहौरी ग्रुप है, वो सारे के सारे जो है ना वो कहते थे मिर्जा कादियानी के जो यार है उनके और इस्लाम के जो गरदार है, कादियानी मिर्जा गुलाम के यार है और इस्लाम के जो गरदार है, उन सबको जो है ना वो उसके जो साथी उसको सहाबी कहते थे। 84 से कबल फिर जनरल ज़ियाउल हक के बात की चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से, और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो सदर पाकिस्तान भी थे, उनके बताया और लिखा कानून हो जाता है। फिर उसने 1984 में अप्रैल 1984 में उसने इब्तिदा कादियानी आर्डिनेंस 1984 जारी किया, जो बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ और गजट नोटिफिकेशन के बाद वो ज़ाब्ता फौजदारी में शामिल हो गया। जब दफा होते 302 दफा जी ज़ाब्ता फौजदारी एफआईआर की, ऐसे ज़ाब्ता फौजदारी में वो कानून शामिल हो गया। उसमें जनरल ज़ियाउल हक ने स्पेशल जो है ना ये एक तरीक़ लिखी, एक आर्टिकल शेक पास की। उस शेक में ये था कि मिर्जा कादियानी का जो भी कोई यार है, साथी, उसको सहाबी नहीं कहेगा, कोई सहाबी कहेगा उसे 3 साल की सजा, और मिर्जा कादियानी की जो बीवी है उसे उम्मुल मोमिनीन कहेगा, उसे भी 3 साल की सजा, और जो अपनी बातखाने को मजे कहेगा उसे भी 3 साल की सजा। तो ऐसे ना पाबंदियां लगी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि इब्तिदा कादियानी 1984 का हुकूमत अमल दरामद करा दे, उस पर कानून के अमल दरामद करा दे, तो ये जो कादियानी है, क्योंकि उसके मुताबिक ये जार भी दे सकते, तो ये कादियानी वजूद से खुद खत्म हो जाए। तो हमारा जो कानून है उसके मुताबिक जो है
मिर्जे कादियानी को साथी को कोई बंदा साहबी कहे तो उसको 3 साल की जो है सजा है। तो ये इसको किसने अथॉरिटी दी है? इसकी सैयद क्या है? इस कमीने की सैयद क्या है? क्या है कि वो किसी को अशर मुबशरा करार दे दे, किसी को साहबी करार दे दे, इससे क्या अथॉरिटी है? और मैं कहता हूँ मेरा जूनियर फॉलोअर हो, खुदा का खौफ करो और तुम इस बदबत और बदनसीब और बखील और गद्दार इस्लाम के खिलाफ तुम उनका साथ तुम दे रहे हो। ये स्लैक नहीं है कि इनके फॉलोअर बनो, आओ आका की गुलामी में आ जाओ, क्यों अपने आप को जन्नत में कर रहे हो? असल में जो है ना इस्लाम हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तफज जो है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जो तफज है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। तो इसको कोई अथॉरिटी नहीं किसी को सहाबी कहने की, किसी को शरा मुबशरा कहने की, और ये अपनी अथॉरिटी से बढ़ जा रहा है, अपनी औकात से आगे जा रहा है, इससे कोई इख्तियार नहीं है। और ये इस्लाम का जो है ना, इस्लाम के गद्दार इस्लाम में शामिल होगा, इस्लाम का दुश्मन होगा। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। बड़ी ज़बरदस्त आपने रोशनी डाली है और मुझे जो है ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली आपकी गुफ्तगू से। अच्छा, ये जो आप आर्डिनेंस बता रहे हैं पाकिस्तान का कोई है कि कोई कादियानी जो है, अच्छा ये सिर्फ कादियानियों के लिए है कि हर एक के लिए है कि कोई भी अपने साथी को साहबी नहीं कह सकता, कि ये सिर्फ मखसूस कादियानियों के लिए है? और आया उस आर्डिनेंस का इतलाक मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर होगा कि नहीं? जी। असल में ये है जो ऑर्डिनेंस जो है लिखा गया ना, ये इसी बात को कवर करने के लिए लिखा गया। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये इसी पे शामिल हो सकता है, या मिर्जा का मुर्जी को कहे उस पर होगा, कि हाँ बंदा भी कहे तो ये होगा। तो उसमें जो अल्फाज लिखे गए उससे मुताबिक ये किसी और दूसरे को भी नहीं कह सकते। ये जनरल बात है, कोई बंदा किसी को साहबी नहीं कह सकता। अच्छा, तो फिर इसको इसकी तरफ अदारे क्यों नहीं मतलब तवज्जो कर रहे? आप क्या समझते हैं? मैंने अर्ज की है कि अगर फितरा कादियान आपने खत्म करना, मर्जियों को खत्म करना है, तो इब्तना कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 जो है उस पर जो ज़ाब्ता फौजदारी कानून है उसके मुताबिक जो है ना गवर्नमेंट को, जैसे इनकी स्पेशल ब्रांचें हैं, गवर्नमेंट की स्पेशल पुलिस है, स्पेशल इंटेलिजेंसी है, वो जो दूसरे काम कर रही है, इसी पर उनको में भी काम करना चाहिए कि आया किसी मस्जिद में अजान तो नहीं हो रही। अगर वो अजान तो नहीं हो रही, ये जो मिर्जा कादियानी के जो फॉलोअर जो है, मिर्जा कादियानी के जो उनके जो पैरोकार है, वो किसी को अपना उम्मुल मोमिन उसकी अजीज को, उसकी बीवी जो है का मिर्जा कादिर को उसको उम्मुल मोमिन क्यों नहीं कह रहे, साबिन नहीं कह रहे? तो इनको चाहिए कि उनकी, और शायर इस्लाम कोई मंजाई कदार यानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी जो एक इस्लाम एक मुसलमान काम कर सकता है वो ये काम कोई बंदा नहीं कर सकता। ये एजेंसियां जो है उनको चाहिए कि उस पर तवज्जो दे, जो उस पर तवज्जो दे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के दायरे पूरे कानून के एहतराम का कानून को अमल करेंगे तो मैं समझ मिर्जा कादरी का सब जल्द खात्मा हो जाएगा। नहीं, वो तो पाकिस्तान के बाहर अभी तो वो मतलब नजर भी नहीं है ना आते। ये बंदा तो पाकिस्तान में नुमाया है और नजर भी आ रहा है, कोई इसके ऊपर अभी कानून नहीं बना और इसके बारे में ये हर वो अकीदा दे रहा है कि जो आम कादियानियों के अकीदे थे वो तो उनको तो किनारे लगा दिया, वो तो अब साइड पे हो गए ना। अब मैं ये कह रहा हूँ वो जो कानून बना था वो इसके ऊपर इतलाक होगा कि नहीं? सेम वही काम, वही अकीदा और नजरिया मिर्जा जूनियर जेलमी का है। अब वो कानून तो बना था वो कादियानियों के लिए बना है या मतलब हर एक के लिए बना है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमारे साथ एक शामिल हुए हैं सैफी जान साहब जी, आप क्या फरमाते हैं? सैफी जान साहब माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। सैफी जान साहब आप बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, पहले तो मैं कहूँगा लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार हतम नबूवत जिंदाबाद। जी ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ। अच्छा जी। ਤੇ ਮਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਮਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਕਨ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਕਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਮੈਂ तकरीबन ਤੁਹਾਨੂੰ डेली तो देखना इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। चैनल सब्सक्राइब किया है हमारा आपने? जी जी सर, तकरीबन ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी।
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹ अच्छा ਟਾਈਮ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, माशाल्लाह, ठीक हो गया, सही हो गया। तो अभी ये जो गुफ्तगू जारी है, इस गुफ्तगू के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਲਾਈਵ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ से। हाँ ठीक है, आप फिर ना थोड़ी देर बैठ के सुनिए और इसके ऊपर इंशाल्लाह जी, ताला जी। तबसरा करते हैं, ठीक है जी। जी अच्छा जी, सुहेल अयाज साहब आए अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सुहेल अयाज, क्या फरमाएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी मैं भी अभी पहुंचा हूँ, अलबत्ता आपके साथ भी जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो आपको नहीं पता कि किस मौजू पे बात हो रही है हमारी? जी अभी तो मैंने देखा है तो पता लग गया जी कि ये मिर्जा जूनियर ने जो अपने अख्चार यार और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने जो नकली और छोटे असहाबी बनाए हैं, और जो इसका ये दावा है कि यानी इसने एक दावा किया है ऑनलाइन बैठ के कि मेरे 313 असहाबी हैं और अख्चार यार, और इन दो जो ये एक दांत निकालने वाला लड़का है और एक ये दाढ़ी वाला मर्द, इसको अपने अख्चार यारों में भी शामिल कर रहा है, और इस तरीके के शायर इस्लामिया के साथ ये गुस्ताखाना ठट्ठा और मजाक कर रहा है। तो इसके ऊपर तो जाहिर बात है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब वाला ही यानी इसके साथ हिसाब किताब है कि ये शायर इस्लामिया को इस्तेमाल भी कर रहा है और मिर्ज़ा कादियानी की तरह। और फिर जब मुसलमान इसको कहते हैं कि इन शायर के साथ तुम मजाक मत करो, तो ये उल्टा मुसलमानों के साथ के यानी उनके साथ बातचीत करे और उनको उनसे माजरत और माफ़ी मांगे, ये उसके ऊपर अकड़ जाता है और यानी मुसलमानों के साथ लड़ाई और झगड़ा करता है और उनके बुजुर्गान के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शब व सतम करता है। तो बस अल्लाह पाक इस पर अपना गिरफ्त करे जी। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको किताब एक नजर आ रही है, किताब का नाम है 313 असहाबे सिद्को वफा, मौलिफ नसरुल्लाह खान नासर आसम जमाली। ये कादियानियों की वेबसाइट से ली गई ये किताब है और ये कादियानियों ने इसको लिखा है। ये किताब क्या है? ये किताब लिखी है जनाब कि मिर्जा कादियानी ने भी अपने 313 साहबी बनाए थे। उसने कहा था ये मेरे साहबी हैं, तो उसके ऊपर ये किताब उन 313 का जिक्र इसके अंदर किया है। ये देखें, मैं आगे ये किताब के लेके जा रहा हूँ आपको, और आगे ये देखें, ये लिस्ट देख रहे हैं आप। ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लूँ, ये देखिए, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। ये पहला बंदा है मुंशी जलालुद्दीन साहब बलानी, खाड़ियाँ, गुजरात, मौलवी फजलदीन, मियाँ दीन पटवारी, काजी यूसुफ, ये सारे साहबी हैं। अब आगे जाते जाए, ये 313 मैं आपको दिखाता हूँ। तो और एक और भी चीज मैंने आपको बतानी है, ये जो 313 है ना मिर्जे कादियानी का साहबी, वो मिर्जा जूनियर जेलमी का पढ़नन है। हाँ ये ले, ये है, ये देखें, हजरत मियाँ करीमुल्लाह साहब सार्जेंट पुलिस जेलम। ये जो है ना, ये वाला बंदा, ये मिर्जा जूनियर जेलमी का पढ़नन है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी आप के नोटिस में होनी चाहिए ये चीज, और आप इसको नोट कर लें। ये 313 साहबियों की लिस्ट हमने आपको दिखाई है। ये मिर्जा कादियानी के 313 जो साहबी थे, जली साहबी इसको मैं कहूंगा, तो उनकी ये लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो वही काम जो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने किया, वही आज मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा है, और कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई इसका एहतसाब करने वाला नहीं है, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है कि तू ये क्या बगैरतियां कर रहा है और ये किस किस्म की तूने अपने। अच्छा, मैं कहता हूं इसके तो जो साबियां जैली साहबी इसने जो बनाए हैं, वो चोर चक्के जानी शराबी भंगिए चरसिए मवालिए और गलत काम करवाने वाले, लवातत करवाने वाले लोग, इसके वो स्टूडेंट जिनको ये साबी कहता है अपने, वो हैं। वो दुनिया के जनाब सहाबा के बाद, किसी अदना से सहाबी के बाद
दुनिया का नेक तरीन शख्स ही क्यों ना हो जाए। अब देखें इमाम आजम अबू हनीफा का कितना मकाम है, वो साहबी नहीं है, साहबी नहीं है, ताबई है। उनको साहबी उनको भी नहीं कह सकते। इमाम आजम अबू हनीफा का उनका इल्म, उनका फहम और उनका जो मकाम है उम्मत मुसलमान के अंदर, वो तो किसी के ऊपर ढका छुपा तो नहीं है, उनको नहीं साहबी कह सकते। तो सहाबा जो अदना सा साहबी है, जिसने पूरी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा मुलाकात की और एक पलक देखा, बस एक पलक, बस ऐसे देखा है, ईमान के साथ उसका खात्मा हो गया, तो उसको जो मर्तबा मिला है ना, वो इमाम आजम अबू हनीफा को भी नहीं मिल सकता। हजूर गौस पाक का कितना नाम है और मकाम है और उनके अल्लाह मुरातब है, उनको मकाम नहीं दे सकते, उनको नहीं साहबी कह सकते। हाँ जी। टिकटॉक के ऊपर हमारे साथ बदर मुनीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। बाबर बाबर बदर कह रहा हूं, बाबर भाई, बाबर मेहर भाई, वालेकुम सलाम, ऊंचा बोलिएगा जरा जी। ये मेरी आईडी जो है ना, ये टिकटॉक की, ये डाउन में गई है अभी। तो कई दिन के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इस पर वार्निंग आ गई थी, तो अभी मैंने ओपन की है, तो ये पहली मैं ब्राड कर रहा हूँ। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इसको टैप टैप करें और शेयर करें जी, बात करें जी। ये इसको जाके पूछें, हाँ उसको ही जाके पूछें भाई, ये क्या माजरा क्या है। उसको कहें कि अपने नानी, नाना, पढ़ नाना, ये सारा का लिस्ट दे, खुद ही पता चल जाएगा आपको। हम्म, अच्छा, तो कल सबक में शिरकत की थी बाबर भैया आपने? हाँ, आज भी सबक होगा, दूसरा सबक है, तो सुन के जाना है और समझ के जाना है, ठीक है। तो अभी तो हम गुफ्तगू करेंगे अपनी, और कोई अगर मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई फॉलोवर, कोई हमायती, कोई सपोर्टर, कोई साबी है, तो वो कॉल पे आए भाई, हम कॉल भी करते हैं और उनकी भी सुनते हैं वो क्या कहती हैं, ठीक है ना। तो इन मर्जियों की भी गुफ्तगू हम सुनेंगे और शामिल करेंगे अपनी गुफ्तगू के अंदर। अगर कोई मर्जई सुन रहा है हमें, मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर, स्टूडेंट जिसको कहते हैं या जो भी है, तो वो साबी वगैरह, तो वो कॉल कर सकती हैं जी। इस्लाही साहब आप क्या फरमाएंगे, माइक ओपन करके? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम आवाज आ रही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आ रही है आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी, आवाज आ रही है। ये जो आपने इंशाफ की है ना, जो माशाल्लाह आपके तो तहकीक ही आपकी इतनी है, तहकीक से बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं कि उसका परनाना है, तो ये उसके जो है ना खानदान का जो असर है ना, खानदान का, तरबियत का और उनके जो खून का असर है, वो नीचे आता आता मिर्जा जूनियर तक आ गया। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी जो है, उसके जो खून का, तरबियत का, सोबत का, वो सारा खानदानी असर आस्ता चलता चलता ना आगे इसके आगे आ गया। वो मुझे कुरान पाक की बात याद आ गई, नाम शायद मुझे वलीद बिन मुगीरा है, कोई ऐसा, उसने बंदे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साल में गुस्ताखी की थी, गुस्ताखी कर दी उसने सरकार के शार में। तो कुरान पाक में कुरान पाक अल्लाह तबारक तआला ने फिर उसका जो है ना उस बंदे का तारफ कराया कुरान पाक का। और ये इसके आगे कई ऐप दिखाई, जिसमें मेन ऐप जो इसका था वो उमर हरामी है।
तो मुझे ये बात ज़हन में दिल में आई है, जो हरामी किस्म के लोग होते हैं, नुतवा हराम होता है, या जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख जदरी होते हैं, आस्ता से नस्ल दर नस्ल उनकी जो गुस्ताखी की वजह से एक आता नीचे चलती जाती है, और जो उसका असर आता है वो ऐसे हरामी लोगों पर आता है। तो अल्लाह ने फिर उसका जवाब दिया कि कुरान पाक में तुम हरामी हो, तुम्हें फलाना नुक्सा है। वो बंदा तलवार लेकर अपनी माँ के पास चला गया, उसने कहा जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो सादक है, सही कहते हैं, कुछ खराबी अगर तो मुझे पता है, लेकिन ये जो हरामी वाली बात है ये सही बताओ, नहीं वरना तलवार लेकर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारा भाव जो है ना मर्द हो गया था, तो फिर जो है ना मैंने किसी चौराहे से आके मैं गुनाह किया, तो उसकी पैदावार हो, तो ये मामला है। तो ये मैं सिर्फ बात कहने का मतलब है कि जो हरामी किस्म के लोग होते हैं उनका जो नुतवा होता है, जो खून होता है, नीचे चलता आ जाता है। क्योंकि इसके खानदान का मतलब कि मिर्जा कादियानी से हैं, तो मिर्जा कादियानी का सारा आपको पता है, उसके खानदान को, उसके सारे कामों का, खून का, और उनकी जो गुस्ताख होता है, गुस्ताख तो वैसे ही जो है ना लिख दिया जाता है कि ये जहन्नमी है, और उसके जो है अखलाकियात उसके तबाह हो जाते हैं, उसकी जो सोच है सल्ब कर ली जाती है, और कोई अच्छी बात उसको दिल में आती नहीं है। शैतान को उसके दिमाग पे पूरा कब्जा हो जाता है, शैतान की चालों को तब चलता है, शैतान के प्लान का हिस्सा बन जाता है। तो ये मिर्जा जूनियर जो है ना जेल में, ये शैतान के प्लान का हिस्सा है। वो अपने प्लान के तहत से काम ले रहा है, क्योंकि इसने जो गुस्ताखी कर करके इसका दिल स्याह हो गया, और उसके जो सोच अफकार इस्लाम की तरफ नहीं जाते, शैतान की तरफ जाते हैं। एक रास्ता शैतान की तरफ है, एक रास्ता रहमान की तरफ है। जो बंदा रहमान छोड़ कर दूसरे पास जाता है, शैतान के नजदीक आ जाता है, तो शैतान तो पहुंच लेता है। तो उसका दिमाग, इसका दिल सारा जो है ना शैतानी चालों में है। जैसे असुदंसी जो गुस्ताख है, जो जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके साथ भी ऐसे चेले लगे हुए थे, शाह लगे हुए थे। तो इसलिए भी इसके दिमाग को शैतान ने पूरा कब्जा किया हुआ है। तो इस्लाम की बात इससे निकलेगी, और इसका जो है ना, इसे खून का असर आ रहा है, जो इसके जो पढ़नाने का असर आ रहा है इसमें। मेहरबानी जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सुहेल याद भाई, आप क्या फरमाएंगे? जी मुफ्ती साहब, इस बदबख्त और इस बदजात के बारे में क्या बयान करना कि आपने माशाल्लाह से अभी जो काफ़ी अरसे से आप एक यानी दावा कर रहे हैं, माशाल्लाह से आप तहकीक की बात कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जो है, उसका जो पड़नाना था, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लानतुल्लाह अलैह का 313वां सहाबी था। अब वक्त तो ये बनता है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी इसके ऊपर एक वीडियो बनाए और आमने-सामने आकर बात करे और इस बात को रद्द करे। जबकि वो इस बात को जानता है कि जो मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब हैं, माशाल्लाह से वो तहकीक करके बात बिल्कुल एकदम 100% सच कहते हैं। तो अगर ये मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी सच्चा होता अपनी बात के अंदर, और ये जो 313वां उस बड़े मिर्ज़ा सीनियर का जो सहाबी है, वो इसका पड़नाना नहीं होता, तो ये सामने कोई वीडियो बनाता, कोई इस तरीके की कोई बात करता। लेकिन दाल में ज़हरी बात है, कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। जबकि देखें आप, हमारे जितने भी हज़रात हैं, वो ये बात जानते हैं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लानतुल्लाह अलैह की तर्ज के ऊपर बना हुआ एक फितना है, और उसी की जितनी भी यानी इबारात और जितने भी उसके उठाए हुए इश्कालात इस्लाम के ऊपर, उनके अंदर वही तजदीद नई पैकिंग के अंदर वो बेच रहा है। जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि खुदाई सिफ़ात इंसान के अंदर दाखिल हो जाएंगी, इसने कहा कि खुदाई सिफ़ात दाखिल हो जाएंगी। ग़ुलाम अहमद कादियानी ने और भी दूसरे कुफ्रियात किए। इसी तरीके से अब ये भी यानी पुराना वही कुफर है, लेकिन नई बोतल के अंदर। वो बोतलों के ऊपर अक्सर लिखा होता है कि यानी पुराना ज़ायका और नई पैकिंग के साथ। अभी नई पैकिंग के साथ जेहलम से उठा है वही पुराना फितना कादियानी। और जहाँ तक इस्लाही साहब माशाल्लाह से, मकसूद इस्लाही साहब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ये इस किस्म का शैतान इनके अंदर, यानी कि रग-रग के अंदर शैतान घुस जाता है। फी सुदूर अन्नास, यानी वो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये शैतान और वो जिन्नात, ये जिस यानी शरारती एक किस्म का इनका यानी पूरा वजूद इनका ऐसा शरारती बन जाता है कि जिस तरह जब मुसलमानों के यानी कोई एक ऐसी यानी एक ऐसा नुक्ता भी नहीं छोड़ता ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने पर, कोई ऐसा यानी जिस तरह फ़लस्तीन का मसला हो या दूसरे तीसरे मसाइल के ऊपर, ये हमेशा ही मुसलमानों के ऊपर सब व शतम करता है और उनके खिलाफ अर्ज़ा आराई करता है। तो अल्लाह पाक इस पर अपनी पकड़ करे। तो क्या हमारे मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, जो ये हमारे स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए माशाल्लाह से, इनको सोचना चाहिए कि ये जो एक बात कर रहे हैं कि फ़िरकों की दुकानें बंद, तो फलान द डैमेज हैज़ बीन डन।
तो ये आप लोगों के ईमानों के साथ खेल रहा है। आप लोगों को इतनी होश और हवास होनी चाहिए कि कोई भी मूर्ख उठकर अगर आप लोगों के सामने खड़ा हो जाए और कुरान और हदीस और नंबर पेश करने लग जाए। मुफ्ती मुबशिर शाह साहब और दीगर उलमा तो अक्सर इसकी जो ये इंटरनेशनल नंबरिंग है इसके ऊपर यानी इसको एक्सपोज कर चुके हैं कि ये गलत यानी इंटरनेशनल नंबरिंग और हदीस के मतन भी गलत पड़ता रहता है। तो आप लोग भी इस थोड़ा ध्यान रखा करें, अपने ईमानों के बारे में फिक्र करें। दुनिया तो इधर ही रह जाएगी, अलबत्ता ईमान जो है हमारा वो हमारे साथ जाएगा। और अगर आप लोग आकर ऑनलाइन टिकटॉक के ऊपर तो अक्सर 24 घंटे जूनियर वाले जो स्टूडेंट है, मिर्जा जूनियर के स्टूडेंट, वो लगे होते हैं अपनी बकवासियात करने और मुसलमानों के साथ गलत काम करने, यानी उनको इस तरीके से उलमा की और सुलहा की गुस्ताखियां करने के लिए। तो ये बड़ा ही जुल्म है। अल्लाह पाक आप लोगों को अक्ल हिदायत दे। जी आमीन मुफ्ती साहब। आमीन आमीन। ये नीचे वसीम खान साहब को आए हैं, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। खान साहब आप कॉल काटिए, दोबारा कॉल करें, उसी लिंक पर क्लिक करके साथ माइक और कैमरे को अलाउ करें, तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा, फिर मैं आपको कॉल ले सकूंगा। ऐसे कॉल पे मैं आपको नहीं उठा सकता, बड़ा मसला है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने जैसा तरीका बताया उस पर अमल करें, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। खान साहब चले गए हैं, चलो देखते हैं उनको पता नहीं समझ आई है कि नहीं अब बात की। अच्छा, तो आप हजरात ने देखा कि मिर्जा जूनियर जेलमी जो है वो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का पैरोकार है। जिस तरीके से मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दीन का बेड़ा गर्क कर रहा था और जो उसके अकायद और नजरियात थे सेम उसी किस्म के अकायद, नजरियात, तरीका वारदात और दुकानदारी जो है ये वैसी ही है जैसी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की। रत्ती बराबर भी फर्क नहीं, इधर का उधर नहीं, कोई अकीदे में फर्क नहीं, कोई तरीका वारदात के अंदर फर्क नहीं, काम करने के तरीके के अंदर कोई फर्क नहीं, समझ आई कि नहीं, जुबान के अंदर कोई फर्क नहीं। जिस किस्म की कुत्ती जुबान मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की थी, वैसे ही कुत्ती और कतूरी जुबान मिर्जा जूनियर जेल में की है। तो वसीम खान साहब दोबारा आए हैं, लेकिन वो ही डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। मोहतरम, आपको मैं तरीका बताता हूँ, कॉल काटिए, दोबारा उसी लिंक पर क्लिक करें, वो नीचे मोबाइल के नीचे एक नीले रंग की ऑप्शन आती है, तो उसको आप ऑन करेंगे तो तब आप कॉल ज्वाइन कर पाएंगे, बसूरते दीगर नहीं कर सकते। ये तरीका कार है। जी बाबर भाई, आप क्या फरमाएंगे? अरहम अहरम भाई, शुक्रिया भाई। ब्राड को शेयर करें यार, शेयर करें। बाबर मेहर भाई आप मौजूद हैं? अच्छा, तो मेरे इलम में कोई ऐसी चीजें जो होती हैं वो मुझे मेरे पर्सनल में सेंड किया करें ना। तो अभी थोड़ी देर तक मैं क्लास भी लेता हूँ अरबी ग्रामर की। आज दूसरी क्लास हमने लेनी है, तो उससे पहले पहले हम कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल लें, उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी या मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का कोई फॉलोवर, कोई कोई स्टूडेंट, कोई कोई हमायती आए, उसके साथ हम गुफ्तगू करें। तो होना तो यही चाहिए कि अगर तुम एक शख्स को फॉलो कर रहे हो तो उसका फिर दिफा भी करो। हाँ जी, यकीन मानिए जब मिर्जा जूनियर जेल में की वो कॉलें चल रही होती हैं हमारी कॉल तो वो उठाता नहीं है। दिल तो मेरा बड़ा करता है कि भाई यहाँ पे जिस बंदे ने कॉल किया उसके साथ मैं गुफ्तगू करूं और उसको फिर मिर्जा जूनियर जेल में का असल चेहरा दिखाऊं कि ये देख चेहरा है इसका, अब इसके बारे तो क्या कहता है। मैं चैलेंज करता हूं कि देखो जी,
अगर तुम ये कहते हो ओहो वीडियो का ये छोटी सी वीडियो है, इसको आगे से भी चलाओ पीछे से भी चलाओ, 1 घंटा पूरा वीडियो बैठ के सुनो तो फिर बात समझ आएगी। पहली बात तो यह कि ये ही काम कादियानी करते थे, कादियानी ये काम करते थे। कादियानियों को जब हम कोई हवाला देते थे वो कहते थे ओहो ये आगे से भी पढ़ो 2 सफ़े, 2 सफ़े पीछे से भी पढ़ो फिर बात समझ आनी है। वो आगे और पीछे से हम जब पढ़ते थे ना वो बात और उलझ जाती थी। पहले तो एक लाइन के ऊपर या 2 लाइनों के ऊपर गुफ्तगू हो रही होती थी, जब आगे पीछे से पढ़ते थे वो अब वो पहले नालों ज्यादा बिगड़ जाती थी, वो समेटनी भी मुश्किल हो जाती। यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट का हो गया है, साबियों का हो गया है कि लो जी आगे से भी सुनो पीछे से भी सुनो। जब वो हम सुनते हैं ना वो बात मजीद उलझ जाती है। पहले तो एक चीज का जवाब देना था, अब 10 चीजों का जवाब देना पड़ रहा है। तो ये है। और दूसरी बात, ये जो कायदा कुलिया तुम हमें आके बताते हो ये मिर्जा जूनियर को क्यों नहीं बताते? वो अपनी वीडियोस के अंदर, हम तो फिर भी तकरीबन मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो चलाते हैं, वो तो जनाब चंद सेकंड की, 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा वीडियो नहीं हमारे उलमा की लगाता अपने वीडियो के अंदर, 5 सेकंड 10 सेकंड बस। तो कभी हमें कहते सुने और नहीं पूरी वीडियो चलाओ फिर बात समझ आए, कभी हमने कहा? हम तो ये कहते हैं हमारे साथ डिबेट करो, मुनाजरा करो, मुकालमा करो, मुबासा करो, आओ आमने सामने आके बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं। कादियानियों को भी यही कहते हैं, मरज़इयों को भी हम यही कह रहे हैं, मिर्जा सीनियर के फॉलोवर को भी यही बात कहते हैं, मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर्स को भी यही बात कहते हैं, आओ बात करो हमारे साथ। अच्छा जी, आइए जी अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। डबल टैप करें यार, डबल टैप करें, आराम से ना बैठें। जो दोस्त आ रहे, मैं कह रहा हूं कि मेरी ये टिकटॉक की ये आईडी कई दिन से मैंने स्टॉप की हुई थी, इस पे वार्निंग आई हुई थी, ये अब कई दिन के बाद मैंने ओपन की है। तो ये मेरी जो आईडी है ये बहुत पीछे चली गई है। तो इधर डबल टैप करें और शेयरिंग करें, ये काम आप करें, मेहरबानी करें, ताकि ये एक्टिव हो जाए ये आईडी। समझ आई कि नहीं? और जो हमारे YouTube के दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि YouTube पे लाइव कॉल करें। साइम साहब शुक्रिया जनाब। आगे सुनिए जनाब, आगे सुनिए। मोहम्मद शुएब अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब अवान साहब जी, मोहतरम शुएब अवान साहब, आपने कॉल डाली है जनाब, आप लाइव हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर के? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। कौन? अच्छा, आवाज आपको सही आ रही है या रिपीट हो रही है बेहतरीन मेरी? आवाज आ रही है, आप बात करें। अच्छा अच्छा, सही है। शाह साहब, काफी दिनों के बाद मैं आया हूँ। जी, जी, मैं ये कह रहा हूँ काफी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ बोलेंगे आप जनाब? आपकी अच्छा, वॉइस तो डिले हो शाह रही साहब, है, असल में आवाज जो बहुत है वो काफी देर के बाद पहुंच रही है। वो देर के बाद आ तो रही है। मैं आपका नेट पहले सही बात नहीं कर रहा है, हूँ, तो आपका नेट आवाज सही बाद में नहीं है, पहुंचेगी। आप कॉल काटिए, दोबारा कॉल कीजिए, ये तो फिर काम खराब हो जाना है। ऐसे तो नहीं काम चलेगा। नेट आपका बहुत डाउन है। अच्छा, मैं काट के दोबारा आ रहा हूँ। शुक्रिया। अल्लाह अकबर। आइए जी, मिर्जा जूनियर जेल में की अगली वीडियो सुनते हैं, तवज्जो से सुनिए।
ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کا بھی نہیں آنی۔ جنتی کو آئے گی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں آ کے میدان محشر موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بھوکے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جنم رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراضگی ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ سب کچھ ہی جائز ہے۔ رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات نیٹ 4 سال آپ کو دیکھ، اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کے فکر میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا بنو۔ استغفر اللہ، نقل کفر نبا شہد، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ مرزا جونیئر جیلمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھو جی اللہ نے کہا ہے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا، چھوٹا خدا، اللہ اصغر بنا دوں گا۔ اللہ اکبر تو وہ خود ہے، تو ساتھ اللہ اصغر وہ بنا دے گا تمہیں۔ ایک چیز ساتھ ہی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھے 60 سال کی عمر دے دو گے تو میں تمہیں اپنی ساری صفات دے دوں گا۔ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، یاد رکھیے گا یہ عقیدہ۔ اچھا پھر اگلی بات اس نے یہ کی کہ دیکھو ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ یہاں شعیب صاحب آ گئے ہیں واپس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا خدا بننا چاہتے ہیں؟ جی کوئی بھی بندہ خدا نہیں بننا چاہتا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیشہ بندے رہنا پسند کریں گے۔ اچھا یہ میرا جونیئر جیلمی نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ گفتگو کریں۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایکچولی اس کی جو تعلیم ہے اور تربیت ہے وہ قادیانی گھرانے میں ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کی بیسیکلی اس کو دیکھیں، اس کے گھر کے جو ساتھ والا گھر ہے اس میں قادیانی ایک بندہ رہتا ہے جو اس کے انکل ہیں، اس نے اس کو وہ توحید پڑھائی ہے۔ اس سے پوچھنے بے شک اس نے جو توحید کا قاعدہ ہے یہ اس قادیانی سے پڑھا ہے، اور جو ترجمہ قرآن جو یہ سناتا ہے اس نے اس قادیانی سے حاصل کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھی جو توحید ہے وہ قادیانی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرا جو انکل قادیانی تھا وہ اس نے میری توحید کے کنسیپٹ کو ٹھیک کیا، یہ ٹھیک کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہی رہنا پسند کریں گے اور مرنا پسند کریں گے، ہم عاجز لوگ ہیں سارے۔ اور یہ جو اس کا کنسیپٹ ہے یہ اسلام سے باہر کا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قل اللہ احد، مطلب کہ جو ہماری یہ سورۃ الاحد ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں بھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا سبق دے رہے ہیں، اور اس کے بالکل ہی یہ اپوزٹ بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ اپوزٹ بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے یہ کافر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ کافر ہوں۔ تو جب آپ نے 2 خدا مان لیے یا 3 خدا مان لی یا پوری دنیا کو خدا ہی بنا دیا آپ نے، تو پھر توحید کہاں رہی؟ توحید تو ختم ہوگی۔ وحدہ لا شریک کا کنسیپٹ اور کلمہ شریف کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کی نسبت سے میں تو مفتی نہیں ہوں، لیکن یہ کلمہ شریف کے اگینسٹ جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔
जजाक अल्लाह जी, जजाक अल्लाह। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रीन शॉट हम दिखा रहे हैं, ये कादियानी किताब का स्कैन है। किताब का नाम है उसवा हसना, और ये कादियानियों के 2 नंबर खलीफा जानी बड़े बशीरे ने ये लिखी है, और जिसकी किताबों का मजमूआ है अनवारुल उलूम, और अनवारुल उलूम की जिल्द नंबर 17 है, और सफ़ा 49 के ऊपर ये रिसाला आपको मिल जाएगा। सफ़ा 75 के ऊपर जाके वही अकीदा जो मिर्जा जूनियर इल्मी बयान कर रहा है, वही अकीदा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आप देख लें। अब इसको हम पढ़ लेते हैं और आपको फिर समझाते हैं। जनाब कहता है कि निजात अल्लाह ताला की सिफात अपने अंदर पैदा करने का नाम है। दर हकीकत निजात नाम ही है उन अल्लाह सिफात को अपने अंदर पैदा करने का जो अल्लाह ताला की सिफात है। कहता है कि निजात इसके अंदर है कि अल्लाह की जितनी सिफात है वो सारी की सारी अपने अंदर तुम पैदा कर लोगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। अब वो तरीका बताता है कि अल्लाह की सारी सिफात कैसे पैदा होंगी। याद रखिएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, अल्लाह की सारी सिफतें इंसान को, मखलूक को नहीं मिली। सारी सिफात तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं है। याद रखिएगा, ये अकीदा है, अकीदे की बात बता रहा हूं। सारी सिफात तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास भी सारी सिफतें नहीं है। हाँ, अल्लाह की जितनी सिफतें अल्लाह ने अता की हैं वो जरूर हैं। और यार माइक जरा शुएब साहब माइक म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है। नहीं, आप काल से ही उतर गए हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा काल से ही उतर जाएं, आपको सिर्फ ये कहा था माइक म्यूट कर लें। असल में लगता है आपको इस्तेमाल अभी सही नहीं आता, उस वजह से फिर आप नीचे ही उतर गए। अच्छा, कॉल काट के दोबारा करिए, वो डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड की ऑप्शन दोबारा आ रही है। वसीम खान साहब भी दोबारा आए हैं तो डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। जब तक डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आएगा तो मैं आपको कॉल पे नहीं उठा सकता मेरे भाई, मजबूरी है मेरी। वसीम खान साहब आ गए हैं, शुएब साहब भी आ गए हैं, ठीक हो गया। अब वसीम साहब और शुएब साहब और दीगर साहिबान, मैं जरा इबारत समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आप से बात करता हूं। तो सारी सिफतें जो है ना, अल्लाह की सिफाते हकीकिया जो हैं, वो सिफतें इंसान को, मखलूक को और मखलूकात में से किसी को भी नहीं मिलती। हाँ, वो अपनी चंद सिफतें वो मखलूकात को देता है, उसका जिक्र मौजूद है। अब ये कादियानी अकीदा है कि खुदा की जुमला सारी सिफतें तुम पा सकते हो और वो तुम्हें दुनिया के अंदर भी मिल जाएंगी, आखिरत के अंदर भी ये सिफतें मिल जाएंगी। उसका तरीकाकार ये है, ये आगे जाके लिखता है, ये एक गलत ख्याल है कि जो लोगों के दिलों में पाया जाता है कि दोजख से बच जाना या जन्नत मिल जाना निजात है। कहता है दोजख से बचना या जन्नत का मिल जाना ये काफी नहीं है, बल्कि जन्नत के अंदर जाके ये तुम्हें सारी सिफतें मिलनी चाहिए। ये जन्नत की बात वो बता रहा है। कहते हैं जन्नत का मिलना तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो वो उसके आगे खाना रख देता है। अब कोई कमीना ही होगा कि जो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाए और फिर कहे कि मुझे खाना भी खिलाओ। खाना वो अपनी मर्जी से खिलाता है, वरना इसका असल मकसद अपने दोस्त से मिलना और उससे बातें करना होता है। इसी तरह जन्नत में, ये जन्नत की बात वो कर रहा है, जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से मोमिन को जो इनामत मिलेंगे वो एक जायद चीज है। और ऐसे ही है जैसे दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो वो उसके सामने अच्छे से अच्छा खाना भी रख देता है,
ورنہ نجات اصل میں جنت میں داخل ہونے کا نام نہیں بلکہ ان صفات کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا نجات ہے جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں. جب ہم صفلی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہمیں اسی دنیا میں جنت مل جاتی ہے. کہتا ہے یہ قادیانی عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر بھی جنت مل جاتی ہے تو جنت کے اندر سوری وہ اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہوگی آپ لوگوں کے لیے، حالانکہ یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن تو واضح کر دوں. قادیانیوں کے نزدیک جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی قادیانی عقیدہ ہے. قادیانی اصل میں نیچر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نیچر ہی ہیں، یہ نیچر کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تھے اس پر یقین نہیں رکھتے. پیدا ہونے کے بعد جب مریں گے کوئی یقین نہیں. یوم حساب کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں. جنت اور دوزخ کے اوپر ان کا کوئی یقین نہیں. ان لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ بس مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملے گی اسی کو جنت کہتے ہیں اور اگر غمی ملے گی تو اس کو جہنم کہتے ہیں. یہ ان کا کنسیپٹ ہے. تو یہی سر سید احمد خان کا کنسیپٹ تھا. تو مرزا قادیانی نے اپنے سمجھ لیں کہ 90% یا 95% یا 99% سر سید سے لیے. صرف بیچ میں ایک ٹچ اس نے دیا تھا نبوت کا کہ میں نبی. بقایا عقائد و نظریات اس نے سر سید سے لیے تھے. اچھا یہ بات جنت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ حوالہ اس لیے میں نے دکھایا کہ یہ اصل کنسیپٹ ہے. یہ قادیانی عقیدہ اور نظریہ تھا جس کو مرزا جونیئر جیلمی نے بیان کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ مثالیں دی تھی اس نے. کہتا ہے دیکھو جی اللہ کو موت آنی ہے، یا تو سامنے ایک قادیانی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کو نہیں آنی. تو تمہیں آئے گی موت؟ وہ کہتا ہے نہیں ہمیں بھی کو نہیں آئے گی. اور اس کے اوپر قیاس کر کے اس نے جناب کہہ دیا کہ یہ منی خدا بندہ بن جائے گا. آپ اندازہ کریں موت تو پھر جنمیوں کو بھی نہیں آنی، کیا وہ بھی منی خدا بن گئے؟ اور وہ والی موت استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں حی. حی کی ایک صفت ہے. حی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی یہ صفت ہے. حی کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا. اس ذات کو کہتے ہیں حی، جو فرماتا ہے کہ لیسا کا مثل ہی شیء، میری مثل تو کوئی شے ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، وہ یکتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے. اچھا جی اب میں ذرا آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے الخاتمۃ الاستفتاء، یہ روحانی خزین جلد 22 صفحہ 714 کے اوپر یہ ایک حوالہ ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. اے مرزا قادیانی جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو بس کن کہا کر فیکون، وہ کام ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ اللہ پاک نے یہی کن فیکون کی جو صفت ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بار بار کی ہے، بار بار کی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کن فیکون کی صفت تو میری ہے. سکرین کے اوپر دیکھیے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ آل عمران آیت 47، سورہ آل عمران آیت 59، سورہ الانعام آیت 73، سورہ النحل آیت 40، سورہ مریم آیت 35، سورہ یاسین آیت 82، سورہ غافر آیت 68۔ دیکھ رہی ہیں کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ آیت سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ اللہ جو ہے وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یہ اس کی صفت خاص ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ مرزا جونیئر مرزا سینئر قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزا قادیانی جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہا کر فیکون وہ کام ہو جائے گا۔ آپ بتائیے یہ تو قادیانی عقیدہ تھا یار، یہ قادیانی عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے یہ انسان کو مل جائے گی، ہر ایک کو مل جائے گی، حی کی صفت مل جائے گی، اللہ کی جملہ ساری صفات مل جائیں گی، کن فیکون بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لہذا وہ منی خدا بن جائے گا، چھوٹا خدا بن جائے گا۔ ہمارے ساتھ وسیم خان صاحب آئے ہیں اور محترم ریاض صاحب آئے ہیں، باری باری ہم بات کرتے ہیں سب سے۔ وسیم خان صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ختم نبوت ٹیم کو زندہ باد۔ حضرت آپ کے پاس بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کی باتیں جو اس کے بارے میں معلومات آپ سے حاصل ہو رہی ہے وہ ایک خزانہ ہے یقیناً۔ باقی کوئی سوال تو کوئی ہے نہیں کرنے کے لیے، صرف سیکھنے کے لیے ہے۔ ایک طالب علم کی طرح آپ سے باتیں سیکھتا رہتا ہوں، آپ کی ہر براڈ میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، جزائے خیر۔ آپ میرے ہر وقت دعاؤں میں ہیں۔ آپ بہت معلوماتی خزانہ آپ سے حاصل ہوتا ہے، اور ایسے فتنوں کے بارے میں جو آپ آگاہی دیتے رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سلام ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ بس میں تو سنوں گا، اجازت۔ جی سنیں بیٹھ کے آپ، تو پھر ہم ریاض صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب ذرا مائک جی میوٹ جی کریے گا، مائک میوٹ کر لیجیے گا۔ ریاض صاحب جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مرشد جناب، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جناب، بہترین۔ مرشد آپ کو سلام ہی کرنا تھا، قسم ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ جو ہے نا کفر کے خلاف اتنی جدوجہد کرتے ہیں، رات دن آپ لگے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے گا۔ قسم ہے ہماری فیملی جب بھی کبھی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دفاع کے لیے بیٹھے ہیں۔ الحمد مرشد آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل آواز آ رہی، ہیلو؟ بالکل آواز آ رہی۔ ہاں ہاں۔ تو چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہم کام کر رہے تھے ملیشیا میں، تو ایک مربی صاحب تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ تو باتوں باتوں میں بات چھڑ گئی، تو پہلے تو ہمیں بھی نہیں تھا علم۔ جب آپ کا میں نے کہا نا وہ جوتے الٹے پہنتا تھا، تمہارا وہ نبی تھا، تمہارا تو ہمارے نبی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں پڑتا۔ وہ فوراً کہنے لگا یہ مبشر شاہ کی جو ہے نا یہ کہانیاں ہیں، یہ ہے۔ میں نے کہا یار وہ تو ریفرنس دیتا ہے نا، وہ تو تمہاری کتابوں کو ایسے نکال کے دیتا ہے جیسے وہ جو ہے نا، جیسے ہمارے جو ادھر اوزار پڑے ہیں جو کام والے ہیں۔ بس اس سے بات نہیں بن پڑی، پھر وہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں یہ وہ۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ حق والوں کو جو ہے نا بالکل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کیا جی ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ کو بھی، آپ کی عظمتوں باقی کو دل بھی خوش سلام۔ ہوتا ہے۔ نہیں آپ کی عظمت، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جزائے خیر عطا کرے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ باقی یہ کہتے ہیں نا ہم جی 122 ملکوں میں، میں نے کہا یار 122 ملکوں میں تم لوگ پھیل گئے ہو، چلو ادھر ملیشیا میں چلتے ہیں تمہاری مسجد میں۔ مسجد کیا تھی، ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ تھا، کمرہ تھا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، تو
मैंने कहा अब बताओ कितने मलाई लोग जो है ना ये मुसलमान हुए, ये तुम्हारे अकीदे में आए हैं। ओ जी ये जो है ना बस मौलवियों की कारस्तानी। मैंने कहा यार मौलवियों की क्या कारस्तानी है, तुम्हारा अकायद तो कुछ दिखाओ। मैंने कहा निकाल ये किताबें, ये अभी मैं आपकी वीडियो चलाई मैंने जिसमें जो है ना ये कहता था कि मैं खुदा हूँ, जैसे अभी आप आते। मैंने कहा भला ये बातें तुम क्यों नहीं कहते? कह रहा था हमारा जो है ना वो एक कुछ साइंसदान गुजरा है, पता नहीं कोई वजीर खारजा था, पता नहीं दाखिला था, फिर वो हमारे इतने पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा पढ़े लिखे की बात नहीं होती, हमारे 122 मुल्क हैं, हमारे वजीर खारजा नहीं है क्या? हमारे जो है ना वो बादशाह नहीं है। वो बात ये है कि ये जो है ना अगर ये चाह के तुम यूनिवर्सिटी में उठा के रखो कि भाई हमारे नबी की ये तालीमात है, तो कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम्हें तो जूते मारेंगे। बहरल मुर्शिद ये हर मैदान में जाना, ये जैसे कहते थे ना पहले, हम तो नहीं जानते थे, हमारे इलाके में तो वैसे ही नहीं है। मैं मुजफ्फरगढ़ से बुलंद करता हूँ, इधर तो ढूंढने से भी नहीं मिलते ये लोग। बहरल मैंने कहा 122 मुल्कों में कैसे पहुंच गए हो? मैंने कहा मुर्शिद कहता है कि जी आप अगर एक आदमी चला गया तुम्हारा कनाडा या चला गया कहीं भी किसी भी मुल्क में चला गया, अल्लाह ले हो। मैंने कहा तुम ये तो देखो तुम्हारी तालीम कैसे, तुम सारा रेफरेंस लेते हो हमारे नबी से, बात करते हो अपने नबी से। बहरल मुर्शिद आपकी मालूमात जो है ना यकीन करें बहुत कीमती है, ये जवाब ही नहीं दे सकते। अल्लाह ताला जो है ना बस आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह जी, आमीन जी। रियाज साहब ये हवाला देखें प्रोग्राम आप और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये एक हवाला पेश कर रहा हूँ, रूहानी खज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 103 किताबुल बरिया के ऊपर मिर्जा कादियानी यही अकीदा बयान करता है। कहता है मैंने अपने एक कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि वही हूं। ये जो सफ़ा है ना, ये सफ़ा 103, 104, 105, 106 आप लोग उठा के देखिए, मैं खुलासा बयान कर देता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है कि देखो जी मैं जब खुदा बन गया ना तो फिर मैंने कहा कि अब इस कायनात को मैं अज सरे नो तख्लीक करूंगा। फिर मैंने क्या किया, कहने लगा पहले मैंने आसमान बनाए, जन्नत दोज़ख बनाई, फरिश्ते हूरें बनाई, फिर मैंने सूरज बनाए, चांद बनाए, फिर मैंने कहा अब मैं जमीन बनाऊंगा। कहने लगा फिर मैंने जमीन तख्लीक। कौन कह रहा है? मिर्जा कादियानी कहता है फिर मैंने जमीन बनाई, आदम को मैंने तख्लीक किया। हम जिस आदम की औलाद है ना उस आदम को मिर्जा कादियानी के बकौल वो कहते हैं मैंने तख्लीक की है। कादियानियों से जब इस मसले के ऊपर गुफ्तगू होती है तो कादियानी कहते हैं कि देखो जी वो तो मिनी खुदा है, छोटा खुदा है, वो बड़े वाला खुदा तो नहीं। तोबा तोबा तोबा, हम तो नहीं कहते वो बड़े वाला खुदा तो नहीं है, वो छोटा खुदा है, वो जिल्ली बरोदी खुदा है, हकीकी खुदा तो नहीं है। हम हकीकी खुदा नहीं मानते मिर्जे कादियानी, हम तो बस जिल्ली बरोदी इस्तियारा के रंग में पता नहीं कौन कौन से रंग बीच में डाल देते हैं, वो इस रंग के अंदर जाके हम उसको खुदा मानते हैं। याद रखिएगा, आप जब कहते हैं ना ला इलाहा तो सारे खुदाओं की आप नफी करते हैं। जिल्ली खुदा की नफी, बरोदी खुदा की नफी, मिनी खुदा की नफी, मीडियम खुदा की नफी, और मीडियम से भी बड़ा कोई कर लो। पहले तो हर खुदा की आप नफी करते हो, हर खुदा की नफी करने के बाद इस्तियारा के रंग में खुदा उसकी भी नफी, बरोजी खुदा उसकी भी नफी, जिल्ली खुदा उसकी भी नफी, तमसीली खुदा उसकी भी नफी, गैर हकीकी खुदा उसकी भी नफी, हकीकी खुदा की भी नफी। सबसे पहले तो आप नफी करते हो, कहते हो ला इलाहा, कोई खुदा है ही नहीं। पहले आप समय मुल्हिद हो जाते हो, पहले मुल्हिद किसी खुदा को नहीं ना मानता, पहले मुल्हिद हो जाते हो, ला इलाहा कोई खुदा है ही नहीं। आगे फिर वो आपसे इस बात करवाता है
کہتا اب کہو کہ اللہ مگر اللہ، ہر خدا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اچھا اس نے پھر اللہ نہیں کہا، سوری، اللہ کی نفی نہیں کروائی تھی، اس نے الہ کی نفی کروائی تھی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا۔ تو اس نے کہا کہ مگر اللہ ہے، الہ بھی وہی ہے۔ الہ خدا کو کہتی ہیں، خدا کو کہتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر خدا، کائنات کے ہر خدا کی نفی، سورج خدا، چاند خدا، آگ خدا، ہوا خدا، ذلی خدا، بروزی خدا، بت خدا، انسان خدا، ہر خدا کی نفی کرنے کے بعد انسان کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، مگر اللہ، وہی ہے خدا۔ تو یہ ہمارا ایمان تھا، اسی ایمان کے اوپر ڈھکا ڈالا مرزا قادیانی نے، اور اسی عقیدے کو پیش کیا مرزا جونیئر جیل میں۔ اب مرزا جونیئر جیل میں کی وہ سٹیٹمنٹ میں دوبارہ سناتا ہوں، اب دوبارہ سنیے گا، اس کے بعد پھر ہم اگلی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، بالکل خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی۔ جنتی کو آئے گی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں دیکھ لیا، موت کبھی نہیں، خدا کی یہ صفت ہے، موت نہیں آنی، تو جنتی کو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ وہ سامنے بندہ بیٹھا وغیرہ نہیں آئے گی، تو یہ تو جنمی کو بھی نہیں آنی موت۔ کون جواب دے گا اس کا؟ حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا اچھا، یہ حدیث اس نے مسلم شریف کی بیان کی ہے، تو یہ کوئی مرضی آئے وہ ہمیں حدیث بتائے کون سی حدیث ہے، میں وہ حدیث دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جعلی بندہ ہے، خدا کی قسمیں جعلی حدیثیں بناتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، ترجمہ کچھ اور بنا دیتا ہے، اس کی کسی بات پہ یقین ہے ہی نہیں ہمیں۔ یہ قرآن بھی کہے نا، قرآن کے اندر بھی ہے، اس پر بھی ہمیں یقین نہیں، خدا کی قسم یقین نہیں، کیونکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا جعلی انسان نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60۔ اچھا، یہ بیچ میں اس نے جو بات کہی ہے جنت میں جو آپ کا دل چاہنا ہے وہ ہو جانا ہے، تو حالانکہ مرزیوں کا ایک عقیدہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے، اگر کوئی خواتین ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں۔ کہتا ہے جی اورل سیکس کر سکتے ہیں۔ اورل سیکس ہوتا ہے کہ بس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، میں کیا اس کے اوپر گفتگو کروں۔ تو اگر کوئی مرزئی یعنی مرزا جونیئر جیل میں والا، یا خود یہ مرزا جونیئر جیل میں جنت میں چلا گیا، ادھر جا کے اس کا دل کیا اورل سیکس کو، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ جو اس نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جو چاہو گے وہ کر سکتے ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ اچھا چلیں آگے سنیں۔ سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ استغفر اللہ، کوئی وعدہ اس نے نہیں کیا۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں۔ یہ دیکھیں انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے
कि उसकी वो फितरत के अंदर ये चीज है, तो वो चाहता है कि खुदा बने। कितना झूठा आदमी है, खुदा की कसम कितना झूठा इंसान है। कोई है मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर? आओ ना यार, आओ डिबेट करो, आओ यार, कोई आओ तो सही कोई। या तो दो ही सूरतें हैं, या तुम लोग हमें अपने दीन के अंदर ले जाओ, या हम तुम्हें अपने दीन के अंदर ले आएंगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ओ बात तो करो ना, मिर्जा सीनियर वाले, मिर्जा जूनियर वाले, कोई गल ते करो, मर जाओ, सामने तो आओ। ये इंजीनियर मिर्जा साहब आ गए हैं, कल भी आए थे, दोबारा आ गए जी। वस्सलाम। कल तो आपने मुझे बात ही नहीं करने दी जी। मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था, आपने वो सवाल नहीं पूछने दिया। अच्छा इंजीनियर, आपका नाम क्या है? अली नाम है जी मेरा। अली। कल आप बात कर रहे थे कि अच्छा मुझे बात वो ये है, अली साहब एक मिनट रुक तो जाए। ओ यार रुक, थोड़ी सी मुझे बात करने ओ भाई रुक तो जाए यार। कल भी आपका यही ड्रामा था, तुसी आंदे हो, आंदे सिर ते ही चढ़ जाते हो। गल ते सुन ले यार, हमारा एक मौजू छिड़ा हुआ है, हम बात उसी के ऊपर करेंगे ना कि आपके तरफ हम आ जाए। सवाल ये है कि देखें कि मिर्जा जूनियर जेलमी कह रहा है कि तुम मिनी खुदा बन जाओगे, तुम्हें अल्लाह अपनी सारी सिफात दे देगा, तुम्हें कुन फयकून की सलाहियत दे देगा, और हर इंसान ये चाहता है कि वो खुदा बनना चाहता है। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? इसके बारे में बता दें। देखिए वो जो उसने बात की ना खुदा वाली, उसको नहीं मानता, लेकिन बाकी बात तो सही की है उसने। उसने जो बात की है कि कुरान में लिखा हुआ है कि जो इंसान चाहेगा उसको मिलेगा। इसमें आप क्यों गलत एक मैसेज दे रहे हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि जो इंसान चाहेगा उसको मिलेगा। हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो अच्छा एक मिनट, जाएगा कौन? जो बात आप करें, एक मिनट सुन तो ले आप। जो बात भी करे दलील से करे। वो कौन सी आयत है, मैं जरा देखना चाहता हूँ, आयत बता दे। अगर आपको वो आयतें नहीं पता या हदीसें नहीं पता, फिर नाम नहीं आपने लेना कुरान हदीस का, ठीक है? ये तरीकाकार है गुफ्तगू का जी। अच्छा जी, मैंने नहीं माइक म्यूट किया, आपने शिकवा किया आते ही कि मुझे कल भी बात नहीं करने दी। हाँ जी, तो मैं उस वाली बात पे करूंगा, कल वाली बात पे। वो आप कुरान की आयत पहले दे दें, पहले कुरान की आयत दे दें, उसके बाद बात कर लें। आपको पता होगा ना कुरान में कहाँ? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है, बता आप रहे हैं, मुझे कहाँ पे पता है? नहीं आप माशाल्लाह आलिम है ना, नहीं मुझे नहीं पता ना भाई। आप ऐसे खाम खा की कोई बात कुरान की तरह मंसूब कर दे और बाद में ये कहें दलील तुम दो, मैं क्यों दूं? सूरह रहमान में लिखा हुआ है ना कि अच्छा सूरह रहमान, मैं खोल लूं जरा एक मिनट, उसमें सारी जो बातें एक मिनट मैं सुन, एक मिनट यार रुक तो जाए, कमाल हो गई यार, आप दे ले फिर। मुझे आयत नहीं पता जी, मुझे आयत नहीं पता तो क्यों आपने फिर पेश की? आपने क्यों कहा कुरान के अंदर लिखा हुआ है? क्यों झूठ बोल रहा? बताइए। यही झूठ मिर्जा जूनियर जेल में बोल रहा है, यही झूठ उसका फॉलोवर बोल रहा है। बताइए क्यों झूठ? क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता, बता आप रहे हैं भाई, मुझे क्या पता है लिखा है कि नहीं लिखा। बताइए आप कहाँ पे लिखा है? मुझे आयत नहीं पता, लेकिन मैंने ये बात सुनी भी। आपने क्यों मतलब सुनी सुनाई बात पेश की है? मैं मतलब इस्लाम में है ना, कुरान इस्लाम ही है ना। कहाँ पे लिखा है ना, बताए, हवाला तो दे दें यार, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, वल्लाह मुझे नहीं पता। फिर मैं आपको फिर ढूंढ देता हूँ, उतनी देर ढूंढ के आए और अगली बात ना करिएगा बुराई कर। ये तरीका ठीक है, माइक म्यूट कर ले बस, ये तरीका कार होता है। हम थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं, ऐसे ना ही लड़ाई करते हैं हम, तो ना ही अगले बंदे को दजलबयानी करने देते हैं। या तो बात करें इन्हें, अगर करनी है तो सबूत के साथ, दलील के साथ। मैंने जितनी बातें अभी की हैं दलील के साथ की हैं, असल स्कैन तक दिखा रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, वीडियो दिखा रहा हूं, कादियानियों की किताबें दिखा रहा हूं। जब तुम लोग बात करते हो कुरान, डायरेक्ट कुरान हदीस, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कहां पे लिखा है? मिर्जा जूनियर जेल में अभी बता रहा था वो मुस्लिम शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, कहां पे लिखा है भाई? जी मुझे हवाला मिल गया जी। हाँ जी दिखाएं। 50-35 एक मिनट जी, सूरह रहमान 50-35 क्या 50
35 सूरा कितनी? सूरा 50 आयत 35 50 50 50 एक मिनट मैंने कहा 50 हाँ जी आयत कौन सी है? सूरा काफ है जी सूरा काफ है। आयत कौन सी है? 35 35 पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है उसमें? ये आप खोले ना कुरान जी खोल लिए मैंने जी, पढ़े। नहीं मेरे सामने तो इंग्लिश में है जी। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़े जो है। कुरान इंग्लिश में तो नहीं है, कुरान तो अरबी के अंदर है ना। अच्छा एक मिनट जी। जी लिखा हुआ है लहुम मा यशाऊन फीहा वलदन मजीद। ये कौन सी आयत है? बताएं अब इसका। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, ये आयत है जी। अच्छा जी, क्या है इसका तर्जुमा? इसका मतलब है कि देयर दे विल हैव व्हाटएवर दे डिजायर एंड विद अस इज इवन मोर। क्या मतलब होता है? तो जी उनको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास उससे भी ज्यादा है उनके लिए। हाँ अब बताएं, मैं तो सही बोला, अब आप तो इतनी बहस कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ये कहा था कि जो वो चाहेंगे, तो अगर कोई किसी मर्ज़ई ने ये चाह लिया कि वो ओरल सेक्स वहां पे करे, तो क्या वो कर सकते हैं? देखिए बात में अब मैं चलिए, अब आपने मुझसे सवाल पूछा ना अपनी बात जी में। जी जी एक मिनट, अब ओरल सेक्स जो है वो एक गलत चीज है, ठीक है, और उसकी बात है कि जन्नत में इंसान जो है गलत चीज नहीं चाहेगा। इसकी जो उसकी जो ख्वाहिशात होगी वो नेक ख्वाहिशात, ठीक है जी। मुझे पता है आप यही टॉपिक बार बार लेके आते हैं, लेकिन वो बड़े बेतुके टॉपिक है ये। नहीं, मैंने एक सवाल किया है कि मिर्जा जूनियर जेल में कहता है जी ओरल सेक्स जो है ना कुरान दी इसमें उसकी कोई ममानत नहीं आई। नहीं, उसने कहा है कुरान में इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ जिक्र नहीं है, ममानत ममानत नहीं कहा। जिक्र नहीं, ममानत नहीं आई। जी जिक्र नहीं है उसका, तो इसमें क्या मसला है? हाँ तो फिर अगर किसी का दिल किया उधर करने को तो नहीं करेगा ना जी, नहीं करेगा। नहीं भाई, अगर दिल का दुनिया के अंदर अगर मैं भाई अगर दुनिया के अंदर दिल कर पड़ा, चलो पहले दुनिया की बात, पहले दुनिया की बात कर लेते। जन्नत में हम शराब पियेंगे, लेकिन वो सही शराब होगी ना। अच्छा चले छोड़े जरा माइक जहाँ पे गलत है वहाँ पे सही होंगी। चलो ठीक है। अच्छा माइक म्यूट करिए। अच्छा ये जो जन्नत के बारे में उसने कहा है, चलो इसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं, सुने। नहीं आप मेरे से बात करें ना, आप छोड़े। अच्छा ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 रोटियां मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहे कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो मोहम्मदी साहब बिन ने दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला तो हर चीज के ऊपर कादिर है ना जी। ये जो ख्वाहिश है तो जन्नत, ये तो जन्नत की उसने कैद भी लगा दी है। तो ये जो अभी आयत आपने पेश की है कि माँ यशाऊन, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये है कि इसके तहत अगर वो औरत चाह रही है, या फर्ज कर लेते हैं कि यार आपकी तरफ से बड़ा शोर आ रहा है इंजीनियर साहब, गड्डियां लंघदियां न पियां, शू शां ये वो हो रहा है, अब माइक म्यूट कर लिया करें, जब बात करनी होगी उस वक्त आप ओपन कर लिया करें। ये शोर आ रहा है बहुत, मैंने अभी आपका माइक म्यूट किया है, शोर आ रहा था। अच्छा, तो मिर्जा जूनियर जेल में की वाइफ है, वो अगर जन्नत में जाके सवाल करती है कि मुझे 4 शोहर चाहिए, तो हालांकि आपने आयत भी दिखा दिया कि जो चाहेगा उसको मिलेगा, और मिर्जा जूनियर की भी सुन लिया आपने। अब मुझे बताइए कि क्या
मिर्जा जूनियर जेलमी की वाइफ को 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं, उसने चाहा था, ख्वाहिश की थी। जी माइक ओपन करें, बताएं। देखिए कुरान कुरान ने जो कह दिया मैं मानूं, क्या मैं इसकी बात क्यों करूं? हम तो कुरान की बात मानेंगे जी, कुरान ने कह दिया खत्म बात। इसमें मैं क्या करूं? कुरान गलत कह रहा है क्या? नहीं, आवाज कट रही है, दोबारा रिपीट करें, क्या कहा आपने? जी मैं कह रहा हूँ मैं कुरान की बात मानूंगा, कुरान जो कह रहा है वो ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि कुरान गलत बात कर रहा है, तो ये तो मेरी तरफ से गलती हो जाएगी ना। मैं कुरान की बात मानूंगा, जो कुरान कह रहा है मैं क्या वो बात ना मानूं? बिल्कुल कुरान एक बात कह रहा है, मैं उसका सवाल क्यों उठाऊं? बिल्कुल माननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान की मानते हुए मिर्जा जूनियर जेलमी के कुलिये को साथ लें, तो मिर्जा जूनियर जेलमी की वाइफ या उसकी वालदा अगर ख्वाहिश करती है कि जन्नत में उसको 4 शोहर मिलें, तो कुरान की रोशनी के अंदर और मिर्जा जूनियर जेलमी के फतवे की रोशनी के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी की वाइफ और उसकी वालदा को 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं? जी जी मैं पहली बात है मैंने फिक नहीं पढ़ी हुई और ना ही मैं मुफ्ती, तो मैं ये तो फिकी मसला आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसका आप बताएं, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता क्या मतलब है। तो बस कुरान जो कह रहा है वो ठीक है, बाकी हम देख लेंगे वहां पे क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि उसने कहा है कि अगर ऐसे वो करे, अगर की बात की है, तो मेरे ख्याल से वो ऑब्वियसली ऐसी बात है कि ऐसी प्लेटफॉर्म में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल से ये है कि कुरान अभी जनाब बिल्कुल ठीक है, और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं इस बात की फिक्री मसला बयान करूँ। ये फिक्री मसला पूछ रहे हैं मुझसे आप, इतना मेरा नॉलेज नहीं है। नहीं, आयत तो आए आपने निकाल ली है ना भैया, आपने निकाल ली है ना आयत। तो आयत तो सिंपल बात कर रही है ना, उसको मैं भाई निकाली है ना। आयत क्या कह रही है कि जो तुम चाहोगे, यशाऊन, जो चाहोगे। गलत कह रही है। नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि औरत अगर 4 शोहर मांगेगी तो उसको मिलेंगे, ये नहीं मानता, ये ख्वाहिश करेगी। ये तो वैसे मेरा दिल भी नहीं मानता जी। तो फिर क्या ये कुरान, ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने कुरान के ऊपर बुहतान नहीं लगाया? यही आयत वो पेश करके वो कह रहे हैं कि कुरान ने कहा था कि जो चाहेगा वो मिलेगी, तो लिहाजा वो औरत अगर 4 शोहर चाहेगी तो उसको मिलेंगे। और ख्वाहिश तो यहाँ पर भी पूरी नहीं हो रही। ख्वाहिश उसने 4 शोहरों की थी, हुआ ये कि अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि उसको मर्द बना दिया। मर्द बनाने के बाद उसको 4 हूरें दे दी, ख्वाहिश तो पूरी ना हुई। हालांकि उसने ख्वाहिश 4 शोहरों की है। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा करे, अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी कर नहीं रहा। इसके ऊपर आप क्या फरमाएंगे? मेरा इस मामले में मेरी राय ये है, क्योंकि मैं अब मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसी ख्वाहिश औरत वहां करेगी नहीं, क्योंकि जिस दिल में ऐसी ख्वाहिश होगी, बिल फर्ज कर लीजिए यार, वो बिल फर्ज कर लेती है। मिर्जा जूनियर जेलमी की अम्मी जान जो है वो 4 शोहर मांग लेती है, बिल फर्ज अगर बीच में डाल लेना आप, अगर वो कर लेती है। सवाल यहां पर यह है कि वो ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं। कुरान कह रहा है कि ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, होनी तो ऐसा ही चाहिए कि 4 शोहर वो मांग रही है, मिर्जा जूनियर जेलमी की वालदा या उसकी बेटी या उसकी जोजा माजिदा, तो 4 शोहर उसको मिलने चाहिए। कुरान कह रहा है ना, साथ वो आयत भी पढ़ के सुना रहा है। लेकिन उल्टा ये हुआ, अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी की नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, तेरी ख्वाहिश नहीं मैं पूरी करनी, मैं अपनी मेरा हुक्म चलेगा कि मैं तेनू बनाना वा मर्द, ते तेनू फिर अगों 4 हूरां देना वा पिया। बताइए, ये तो फिर अल्लाह ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर ना बाशिद अपने वादे का खिलाफ कर दिए। हालांकि वो तो कहता है ला तुखलिफुल मियाद, वो अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। कुरान कहता है कि वो जो वादा कर लेता है वो उसका खिलाफ करता ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था अल्लाह अपने वादे को पूरा करता, तो ये तो पूरा नहीं किया उसने वादा। जी इसके बारे में क्या फरमाएंगे? जी माइक आपका म्यूट है। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं आप, माइक म्यूट था ना आपका। जी हेलो, मैं कह रहा हूँ कि आप बताएं ना कि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, पहले तो जो जवाब दे दिया हुआ है उसका तो कुछ कर लेना, मुझसे तो बाद में पूछिएगा। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जन्नत में जो यहाँ बुराइयां हैं वहाँ बुराइयां नहीं मानी जाएंगी। वो फॉर एग्जाम्पल शराब यहाँ पे हराम है,
वहां तो वो हराम नहीं होगी, वहां तो हम पियेंगे, वहां पियेंगे, तो वहां पियेंगे, हाँ जी, वहाँ वो ये वाली वहाँ शराब मशरूब होगी, होगा जी ये वहाँ। गंदी शराब होगी, ये वाली। नहीं ये वाली नहीं ये वाली नहीं तो होगी। फिर नेक आपने इस पाक दुनिया शराब की शराब के साथ जन्नत की शराब को कैसे मिला दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि है तो मशरूब ही ना जी वहाँ पे। नहीं मशरूब, वो तो शराब तहूर का कहता है कि वो शराब तहूर होगी। परवेज मिर्जा साहब माइक म्यूट रखिएगा मेहरबानी जी। तो बताइए, वो तो शराब तहूर के बारे में अल्लाह ने कहा था, और आपने दुनिया की शराब के साथ उसको मिला दिया जन्नत की शराब। आप कह रहे हैं वो वहां पे शराब मिलेगी। नहीं, ये मेरा जवाब में सही नहीं है, मेरा बस सवाल था आपसे कि क्या मुझे क्या ये बात पता क्या है सवाल कैसे था? लिखा हुआ है। क्या सवाल था? मतलब मेरा ये सवाल था कि जिस तरह शराब पे लिखा हुआ है, तो शायद, लेकिन मेरा वो तो नहीं मानता शराब जी कि वहाँ पे तहूर एक दुनिया औरत की जो है वो, शराब अलग है, आप उधर सही की कह रहे हैं, शराब सही कह रहे अलग हैं है, जी। मेरा जमीन आसमान का फर्क है। उसने कहाँ उसने की चीज को मिर्जा आपने ने कहाँ जवाब पे दिया जाके है। मिला अब दिए? मिर्जा क्या जवाब दे इस बात का, क्या जवाब उसने मुझे नहीं पूछा पता, क्या आपने जवाब? दे देना जवाब। मैं क्या, मैं ये जवाब किससे जाके लूं? बताइए ना, मुझे तो बताइए, एक बंदा बताइए जिससे मैं वो जवाब लूं जाके। तो बंदा ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं जवाब लूं। बताइए ना, वो खुद जवाब देता है ना ही उसके स्टूडेंट जवाब देते हैं। कौन जवाब देगा? देखिए, इससे बड़े बड़े इख्तलाफात हैं जो फिरकों के दरमियान में, इससे बड़े 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 इख्तलाफात बड़े हैं। को छोड़े, अभी तो छोटे मुझे से एक ये छोटा सा छोटे इख्तलाफ से मौजू है, पे क्या, वो बड़ों बड़ों को छोटे से छोड़े, मौजू पे बड़े क्या बड़े है इख्तलाफ को बाद में देखेंगे ना। अभी तो ये एक छोटी सी सरे दस एक चीज है, इसका जवाब चाहिए। मेरे पास जवाब नहीं है जी। हाँ नहीं, फिर आप खामोशी से बैठ जाएं। परवेज मिर्जा साहब आए, इनसे बात करते हैं और इनकी सुनते हैं। जी परवेज मिर्जा साहब, माइक ओपन कर लें, माइक नीचे से ओपन कर लें। जी परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं परवेज मीर बोल रहा हूँ। जी जी। जनाब, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो सवाल जो है उल्टे सुलटे करते हैं ना, ये सब क्या कहते हैं, मिर्जा इंजीनियर के शागिर्द हैं। जी जी जी, ऐसे ही है मीर साहब। और मिर्जा इंजीनियर ने एक बार उसकी मैंने कैसेट देखी थी। वो कहता है कि मिर्जियों का तर्जुमा ठीक है और मुसलमानों का गलत है। ये अल्फाज उसने बोले हुए। जी बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं उसने। जब मुझे ये पता चला कि उसने ये अल्फाज बोले हैं, तो मैंने फिर उसका नंबर ढूंढा है। उसके दो जो उसने लड़के रखे हुए हैं जो 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 क्वेश्चंस लेते हैं, मैंने उनको, मेरे पास उसकी वॉइस मेल है जो उसके साथ टेलीफोन पे बात हुई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। जी जी वो जो होली स्पिरिट डॉक्टर साहब आते हैं ना आपके पास जी प्रोग्राम में भी, उनकी वेबसाइट से मैंने कुछ उसने जो मिर्जे ने कुरान पाक का तर्जमे में रद्द-बदल किया हुआ है जी जी और अल्फाजों में रद्द-बदल किया हुआ है, अहादीस में रद्द-बदल किया हुआ है। जी जी मैंने उसको सब भेजी। जी 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 मैंने बोलते मैंने रहिए आप। मैंने मैंने इंजीनियर को सब भेजी हैं और उसने मुझे कहा कि तर्जुमा तो क्या कहते हैं मिर्जियों का ठीक है ना। मैंने उसको जवाब दिया कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं और ये जो तर्जमा किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ला नबिया बादी, हम उसे ये तर्जमा करते हैं। ये ठीक है कि वो उसका तर्जमा मोहर है, मगर हमने
अहादीस से उसका तर्जुमा दिया है, हदीस शरीफ की रोशनी में हमने उसको वजाहत की हुई है। जी आप जा फरमा रहे हैं, असल में ना वॉइस मेरा मुझे लग रहा है कि डिले होके पहुंच रही है आप तक। डिले हो गया आ रही है, मैं इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ। हाँ हाँ डिले, चलिए ठीक हो गया, आपका मैसेज मीर साहब पहुंच गया। जी और फरमाएं। मुझे 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 आखिरी 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 थोड़ी सी बात, अखीर पे वो मुझे कहता है, अखीर पे वो मिर्जा का शागिर्द मुझे कहता है कि आप हमसे क्या चाहते हो। मैंने उसको सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने कहा जैसे आप बुजुर्गान दीन के ऊपर बोलते हो ना, और मैंने आपको मिर्जे का सब कुछ दिखाया है, तर्जुमा गलत सारा कुछ, उसके ऊपर भी बोलो। मैंने कहा हर रोज बोलो जैसे बुजुर्गान दीन पे बोलते हो। तो उसने मुझे कहा कि उसने वीडियोस बनाई है। मैंने कहा 3 4 5 वीडियो बना के ये खत्म नहीं होता मामला। जैसे बुजुर्गान दीन पे बोलते हो, मर्जी के ऊपर ही बोलो, वो मिर्जे के ऊपर नहीं बोलता। यहाँ से आप अंदाजा कर लो कि वो कैसे लोग हैं। जी बिल्कुल परवेज साहब। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये मैसेज ही देना था। मैंने लास्ट वीक उसका एक शागिर्द था प्रोग्राम, मैंने उसको प्रोग्राम में फोन किया है। जी जी मैंने जब फोन किया तो मैंने कहा कि मिर्जा तर्जमे में रद्दोबद इसलिए करता है मरज़ई के, क्योंकि वो मिर्जे को नबी बनाना चाहते हैं। जी और नबी, मैंने कहा उसकी किताब में लिखा हुआ है कि मिर्जा नबी कैसे बना, अल्लाह ने रजूयत की थी, अल्लाह ने सेक्स किया, उसको 10 महीने का प्रेग्नेंट हुआ, फिर उसमें से अस्सलाम वालेकुम। पैदा हुए। ये गुलाम साहब एक मिनट जरा माइक म्यूट करिएगा, हमारे YouTube पर एक दोस्त बात कर रहे हैं, तो बाद में आपको मौका देते हैं। देखें, जब मैंने उसको कहा ना कि अल्लाह ने रजूयत की है, तो उसके शागिर्द ने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसके शागिर्द ने कुछ नहीं कहा। माइक पे वो उसकी स्क्रीन पे एक और लड़का था, वो भी बोल रहा था। उसने तौबा की है, कानों को हाथ लगा के कहा है तौबा। उसके शागिर्द ने तौबा नहीं की। ये है मिर्जे इंजीनियर का शागिर्द। ये मैंने वो वीडियो उसकी, आपने कहा था कि उसका क्लिप रिकॉर्ड किया करो, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मैं आपको भेजूंगा। आप देखो कि उसका शागिर्द तौबा नहीं कर रहा, उसका शागिर्द तौबा नहीं कर रहा। इतने खंजीर लोग हैं ये। वो दूसरे लड़के ने तौबा की है, दूसरे लड़के ने तौबा की है। इंजीनियर साहब, मैंने बस यही मैसेज देना था कि ये देखो, ये मिर्जा इंजीनियर, मैंने परवेज की बहुत कैसेटें सुनी है, ये आखिरी मैसेज है मेरा, प्लीज। पता क्या, मैंने जब खत्म नबूवत के मुजाहिदीन का प्रोग्राम देखने शुरू किए हैं ना, तो मुझे एक बात समझ आई है कि पहले सर सैयद था, सर सैयद के बाद परवेज आया। एक मिनट परवेज साहब, जी जी। ताजीम जफर साहब जी बोलें। जी पहले एक मिनट जी, एक मिनट, ताजीम जफर साहब बोलिए, माइक ओपन करें। जी हेलो। जी जनाब, क्या हाल है मोती साहब? ठीक अल्लाह है। का शुक्र है। क्या जी आप बात करें जी, ये कोई एथियस्ट था। परवेज मीर साहब बात करें। जी, मैं आखिरी बात करता हूँ। देखो,
मैंने परवेज की बहुत कैसेटें सुनी है। अच्छा। तो वो जो परवेजी था ना, गुलाम अहमद परवेज। जी 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 जी। तो मैंने जब मुजाहिदीन खत्म नबूवत की कैसेटें सुनी है ना, तो मुझे एक चीज की समझ आई है कि पहले सिर सैयद था, पहले सिर सैयद था, फिर गुलाम अहमद परवेज आया, सर सैयद फेल हुआ, गुलाम अहमद परवेज भी फेल हुआ। अब ये मिर्जा आया है, ये वो गलतियां नहीं कर रहा जो गुलाम अहमद परवेज ने की थी, ये वो गलतियां नहीं कर रहा जो परवेज ने की थी, ये उन गलतियों को छोड़ के प्रोग्राम कर रहे हैं सारे। हाँ, जज़ाकल्लाह। मीर साहब रुकिए, जाना नहीं है, जाना नहीं है। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम, रुकना है, मैं ना अभी क्लास असल में लेनी है, तो थोड़ा सा वक्त तो मुझे क्लास के लिए दे दें, उसके बाद फिर वापस आती हैं सारे दोस्त।